अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TV21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। अकबरुद्दीन अवैसी की आज भी ऐवान असम्बली में गूंज, हमारी शरायत मानी जाएगी तो तेलंगाना कबूल किया जाएगा। बीजेपी राज्यसभा मेंबर ने निजाम हुकूमत के खिलाफ जहर अफशाई की। टीआरएस कारकुनों ने तेलुगु देशम सदर का पुतला नजर आतिश किया। अब खबरें तफसील से। आज भी ऐवान असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की गूंज थी। एंग्री यंग मैन ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि तेलंगाना बिल में उर्दू को पहला दर्जा दिया जाए। तेलंगाना का रिजर्व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए। तेलंगाना का सदर मुकाम हैदराबाद ही रहे और इन्होंने सीमा आंध्रा के लिए अलहदा मुकाम बनाने का मुतालबा किया और दीगर शराइत शामिल हैं। एंग्री यंग मैन ने कहा, ऐसा नहीं किया गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी तेलंगाना बिल की सख्त मुखालिफत करेगी। यहाँ यह कहना बेजाना होगा कि एंग्री यंग मैन के 2 दिन के खिताब से सियासी कायदीन और अवाम की मालूमात में भी इजाफा हुआ। इससे कबल अवाम को और सियासी कायदीन को भी रियासत आंध्र प्रदेश की तरक्याती कामों के बारे में इल्म ही नहीं था। Will be the chief minister. Am I right or wrong? Senior member is there. Jana Reddy Saab is there. Home minister. He was a home minister. He is a champion leading the cause for Telangana with everybody. What I am saying is right, sir, or not? Do you want a Telangana which doesn't have the power to rule the capital? Law and order not in the hand. Governor has every power. Let us move on. Sir. Yes. Hyderabad and Cyberabad police also, sir. There are details. I will table it, sir. If law and order in common capital area of Hyderabad are brought under central control of the governor, as also the police commissioner of Hyderabad and Cyberabad will become super chief minister because they would wield more powers than the chief minister of the new state of Telangana. If both the police commissioners report only to governor, what would the chief minister of the new state of Telangana do is my question mark. Yes. Sir, Article 19(1)(d) of Constitution enables citizens to move freely without the territory of India. Article 19(1)(f) relating to right to property was deleted by the 44th Amendment of the Constitution in 1978. Thus, the Constitution only guarantees freedom to settle anywhere in India. It is preposterous for anyone to claim that the area where they reside would be conferred a special status. Sir. Many Telugus from both Seema, Andhra and Telangana region of AP have settled in other big cities in India, including Chennai, Bengaluru, Mumbai, Delhi, Kolkata, Surat, Bhubaneswar, etc. They have contributed significantly to the growth of cities. Similarly, many Telugus from Seema, Andhra and Telangana have settled in US. They have contributed immensely to the growth of Silicon Valley. Can they demand that other Indian cities or the Silicon Valley in US be made a separate territory for them? This is a very spacious argument, sir. It is the protection of the properties and lives and securing the future of the residents of the state is the responsibility of the then government. You are giving a state and you don't find the state leaders to be capable enough to protect the properties of fair, sir. Sir, I would also like to say that minorities need protection, sir, and we want no separate mechanism was put in place for providing security to Muslims in Hyderabad state after the minority community was subjected to large-scale genocide following the Indian military action against erstwhile Nizam government in September 1948, better known as Operation Polo. Police section, you can go through the report of Sundarlal committee which was constituted then, sir. Sir, and when I say a protection should be given, sir,
I say that the protection should not be only for the Muslim residing in Telangana. The protection should be given to the Muslim residing in Rayalaseema and Andhra also. और मैं ये जरूर कहूंगा आंध्रा और रायलसीमा के मेरे मुसलमान भाइयों। बीजेपी पार्टी राज्यसभा मेंबर वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिर एक बार निजाम हुकूमत के खिलाफ जहर अफशाई की। इन्होंने कहा कि निजाम हुकूमत के दौर में कई खतले आम हुए। కొంతసేపు పాకిస్తాన్తో కలపాలన్నాడు, ఐక్యరాజ్య సమితికి ఫిర్యాదు చేశాడు, ఆయన ఆదర్శం అట కొందరికి. నిజాం హయాంలో మిలిటరీ హిందువులు 7% జనాభా, ఇదో హిందువుల శాతం ఎంతో ఆ నిజాం వారసులే చెప్తే బాగుంటుంది. సివిల్ సర్వీస్లో 12%, గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్లో 10.7%. ఇది నా లెక్కలు కాదు, 1931లో నిజాం గెజెట్లో పేర్కొన్న అంశాలు. గెజెట్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా కావాలంటే. పెళ్లి చేసుకోవాలంటే హిందువులు పన్ను. If you want to marry, you have to pay tax. If you want to perform Vinayak Chauthi, you have to pay tax. If you want to perform Satyanarayana Vratam, some Vratam in your house, you have to pay tax. And he is secular. కాసిం రజ్వీ అనుచరుల దుర్మార్గాలు అన్నీ ఇన్ని కాదు. ప్రజల భాష అయిన తెలుగును కూడా మాట్లాడేదానికి కూడా సరైన అవకాశం ఇవ్వలేదు. అందుకని సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఆంధ్ర సాంఘిక చరిత్ర అని పుస్తకం రాశారు. దాన్ని చదివితే ఒకసారి అర్థమవుతుంది. సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు అందరికీ చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా చిరపరిచితులే. అందుకని ఈ నిజాం కీర్తన ఆలాపించే వాళ్ళు ఈ వాస్తవాలు తెలుసుకుంటే మంచిది. నిజాం వారసత్వాన్ని కొనసాగించడానికి మేము పూర్తి వ్యతిరేకం. तेलुगुदेशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू और इनके अरकान की जानिब से निजाम हुकूमत पर तनकीद करने के खिलाफ आज लंगर हाउस इलाके में टीआरएस कारकुनों ने सदर तेलुगुदेशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू का पुतला नजर आतिश किया और एहतजाज किया। आज के दिन ये पुतला जलाने का मेन मकसद ये है कि चंद्रबाबू नायडू कल असेंबली में ये बोल रहे हैं कि 400 साल में 400 साल में निजाम कुछ नहीं करा हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि 400 साल में जो चीज 400 साल में निजाम बनाया तो उन्होंने 9 साल में बनाया बोल रहे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने 9 साल में क्या कर लिए। और उन्होंने ये हाईटेक सिटी एक बना के आजू बाजू के जमीना कब्जा करने के लिए बनाए और बना के बोल रहे मैं 9 साल में इतना करा। आज एक गवर्नमेंट दवाखाना नहीं बना सके उन लोग। 9 साल में उन्होंने मैं हुकूमत करके मैं ये करा वो करा बोल रहे, उन्होंने अपने नेटिव प्लेस में कुछ नहीं कर सके उन्होंने। तो उन्होंने कैसा बोलते कि हैदराबाद को मैं वो करा ये करा बोल के उन्होंने अपने खास मामू को अपन
सीएम बनने के लिए उनका खातिमा करे उन्होंने। लेकिन हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नायडू को, जगन को, किरण कुमार रेड्डी को, इन लोग को हम आप चेतावनी दे रहे कि आइंदा निजाम के बारे में या माइनॉरिटी के बारे में ऐसी बात करेंगे तो उन्होंने जहाँ है वहाँ पर उनको घेराव करेंगे हम लोग। ये माइनॉरिटी बोल रही। और हमारे निजाम जो बना के गए उसके अंदर आज इतने 40 साल में जितने हुकूमत आए, चंद्रबाबू नायडू आए, किरण कुमार रेड्डी आए, YSR राजशेखर रेड्डी आए, पूरे आए आंध्रा के पार्टियां, लेकिन हमारे हैदराबाद को कुछ नहीं करे। ये जो भी करके गए हमारे पुराने 400 साल के लोग ही करके गए। ये लोग अगर करके जाते तो इनको जाओ बोले तो कहीं को नहीं जा रहे भाई लोग। इन लोगों को फुगट में आके उन्होंने अपने नेटिव प्लेस को। वयस्कर कांग्रेस पार्टी रुकन असेंबली बाबूराव ने ऐवान में अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हुए कहा कि कारगुजार सदर विजय अम्मा ने जो कह दिया है इसी पर हम तमाम अरकान अटल हैं, और इन्होंने कहा कि हम तेलंगाना बिल की तायीद नहीं करेंगे। अध्यक्ष, थैंक यू वेरी मच अध्यक्ष। మరి ఈ రోజు ఒక పేద ప్రజల ప్రతినిధిగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా రాష్ట్ర విభజన బిల్లు మీద మరి ఈ విధానం చాలా బాధాకరంగా నేను భావిస్తున్నాను। ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర విభజన బిల్లు 2013 మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరపున, నా తరపున రెండు ప్రాంతాల్లో విభేదాలు సృష్టించే విధంగా ఉండుట వలన మరియు రెండు ప్రాంతాలకు తీరని నష్టం చేకూర్చే విధంగా ఉండటం వల్ల నేను పూర్తిగా ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్నాను। మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ మొట్టమొదటి నుంచి సమాకేంద్ర కోసం పోరాటం, అలాగే అసెంబ్లీలో ముఖ్యంగా సమైక్య తీర్మానం చేయాలని మొట్టమొదటి నుంచి కోరుతున్నాం। అలాగే కనీసం ఈ అసెంబ్లీలో కనీసం ఈ యొక్క ఓటింగ్ అన్న మీరు ప్రవేశపెట్టాలని ముఖ్యంగా మరి గౌరవ స్పీకర్ గారికి అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రతిరోజు मूवमेंट फॉर मुस्लिम जस्टिस एंड मुस्लिम वेलफेयर की जानिब से इराजुद्दीन एजाज और एम.ए. खादर ने आज वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल IPS से मुलाकात की और इन्हें एक याददाश्त पेश और इनसे मुतालबा किया कि वक्फ इमारतों पर साइन बोर्ड नस्ब किए जाएं ताकि आमदनी हो सके। उन पर नाजायज़ कब्जे और वहाँ पर जो है भैंसों के तबेले में तब्दील कर दिया गया है, उस सिलसिले में भी नुमाइंदगी की। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, माइनॉरिटी वेलफेयर में इसका एस्टिमेशन भी लगा के सबमिट किए गए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कारकर्दगी नहीं है। मैं इस मौके पर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर जनाब शेख मोहम्मद इकबाल साहब की तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने जब उनके सामने जो भी मसाइल लाकर पेश किया गया, उन्होंने किसी ताख़ीर के बगैर जो है मसाइल की बाजियाबी के लिए जो है उन्होंने कामयाबी की। जैसे कि मदीना एजुकेशन सेंटर 1999 से जो है इंक्वायरी चल रही थी और बड़े ही जो है साजिशों की तहत जो है उसे वो किया गया। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 200-250 रुपये के किराए पे जो है मदीना एजुकेशन सेंटर को दिया गया था, 300 रुपये जो है हिमायतनगर के मदीना स्कूल को दिया गया था। इकबाल साहब की कार्रवाई जो की गई है, इकबाल साहब जो है काबिल सताइश हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यही रफ्तार बरकरार रहे और औक़ाफ़ी जायदादों की बाजियाबी के लिए काम रहे। मैं आज ही हमने स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड को एक नुमाइंदगी करते हुए जनरल सेक्रेटरी तहरीक समाजी इंसाफ भवानी न्यू साइंस कॉलेज नारायणगुड़ा चेयरमैन सुदर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 24 जनवरी को शालीमार फंक्शन हॉल में 2 दिन का एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने तलबा से शिरकत करने की ख्वाहिश की। डीन रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर ऑफ तेलुगु यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ 4 दिन पहले चेयरमैन के माफिक एक जैन होते साथ पूरा रीएक्टिवेट किया, रिजुविनेट किया, लोगों को बिठाया, फिर चारों फिर के सब लोगों से बात करके प्लेसमेंट कहाँ पर दिलाना, बच्चे जैसा कि MSc पास होते वो लोग रोड पे नहीं आना, इमीडिएटली दे शुड गो टू ए प्लेस वेयर दे कैन गेट द अपॉइंटमेंट इमीडिएटली। सो सब 15,000 20,000 का प्लेसमेंट मिल जाना होगा।
ऐसा सोच के हम लोग क्या करें, अपोलो यूनिट है ना, सब जो अपोलो हॉस्पिटल है उन लोगों को बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, आरआर लैब्स, एसडी लैब्स एंड आल्सो शांता बायो जो साहब है, उन सबसे बात किया, सबसे बात करके बच्चों को इमीडिएट प्लेसमेंट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया और वो मान भी लिए। इस प्रकार पहले ये सोचे थे कि कुछ केमिस्ट्री का एक सेमिनार रखें, बायोकेमिस्ट्री का, तो डॉक्टर विजय कुमारी एंड लक्ष्मी कुमारी मैडम दे प्लान इट। बायोकेमिस्ट्री में आप देखिए थोड़े लोग ये अल्जीमर्स डिसीज आता है, जो भूल जाते रहते लोग, बार में भूल जाते थे, कुछ याद नहीं रहता, वो लोगों के लिए मेडिसिन तैयार कर रहे हैं आजकल। वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करके उसका यूनिट एस्टेब्लिश किए। उस प्रकार सिविल सप्लाईज विजिलेंस के अहदेदारों ने आज गुड्डी मलकापुर इलाके में धावा करके गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जा रहे गैस सिलेंडर्स भारी तादाद जब्त कर ली। जब्त शुदा माल में 11 बड़े सिलेंडर और 61 छोटे गैस सिलेंडर शामिल हैं। नाज़रीन, फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां। अकबरुद्दीन अवैसी की आज ऐवान असेंबली में गूंज, हमारी शर्तें मानी जाएगी तो तेलंगाना कबूल किया जाएगा। बीजेपी राज्यसभा मेंबर ने निजाम हुकूमत के खिलाफ जहर अफशाई की। टीआरएस कारकुनों ने तेलुगु देशम सदर का पुतला नजर आतिश किया। नाज़रीन, आज खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए TV21। अल्लाह हाफिज।